Hello students, welcome to Time Classes. I hope all of you are doing good and all set for this second part of the first class. Last time I discussed mainly about the theory of computers, the history of computers and some basic things like memory, input, output devices. In this class, mainly we'll discuss the questions which are based on computer terminology. As you know, objective paper has 4 options, so sometimes you can take the help of these options to solve these questions. The handout code is 701005 and 701006. 35 questions in first handout and 35 questions in second handout. See, computer in general is very vast, so I'll try to cover most of these things. But if one or two questions are like requiring a very high theory or things, तो आप उसको directly याद कर सकते हैं. So it's not possible to explore everything in 1 hour class. So I'll try to cover most of those things. हमने cover करी भी है. But still, if there is something which requires some extra things, so या तो you can search on Google or you can ask for in the doubt class only. Because sometimes it is possible कि 1 out of 50 questions, 1 out of 100 questions can be very lengthy. So let's start today's class. The transistors was used in which generation? First generation, second generation, third generation, and fourth generation. So I've discussed generations of computers. There are 5 generations that were there. First generation, second generation, third, fourth, and fifth generation. Transistors we use in second generation only. In second generation, transistors were used. They are cheaper, they consume less power, and they are more reliable and faster. It was a phase from 1959 to 1965. Answer is second option. Before that, earlier phase was basically vacuum tubes. The first generation was having vacuum tubes. Second generation is basically transistors. Third generation कौन सा था? Yes, third generation is integrated circuits (IC), and the fourth generation was microprocessors. So for this question, transistors were used in which generation? Answer is second generation, second option. The first generation computer was made up by using, अभी तो बताया था, the first generation was vacuum tubes. So ICs was in third generation, processors was in fourth generation. So third generation was first generation was basically vacuum tubes. Vacuum tubes as a basic component for memory and circuitry for CPU. Punch cards, paper tapes, magnetic tapes were used for input and output devices. For question number 2, answer is first option. In first generation, we use vacuum tubes. The speed of a computer that can be performed several operations per second is called this. Normally operations per second or cycles per second, मैं एक वर्ड कितनी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ, कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ, आई एम डूइंग एन ऑपरेशन, मैं पर सेकेंड में कितने ऑपरेशंस करता हूँ. नॉर्मली इससे हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं. फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए वी यूज दिस थिंग कॉल हर्ट्ज. आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी भी सुना होगा कि ये रेडियो जो है इस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होता है, स्टार्ट होता है, तो उसके नॉर्मली हम हर्ट्ज यूज करते हैं. एंड सेम थिंग फॉर कंप्यूटर एज वेल, ऑपरेशंस पर सेकेंड और साइकिल्स पर सेकेंड वी नॉर्मली यूज हर्ट्ज वाला पार्ट. ओनली साइकिल्स आंसर नहीं हो सकता है, साइकिल्स पर सेकेंड आंसर हो सकता है. तो हर्ट्ज इज यूज टू मेजर द ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. आंसर इज फोर्थ ऑप्शन. जैसे कोई भी प्रोसेसर की स्पीड नॉर्मली होती है 2.2 गीगाहर्ट्ज, 1.8 गीगाहर्ट्ज, तो कितने ऑपरेशंस पर सेकेंड में परफॉर्म कर सकते हैं. तो पर सेकेंड ऑपरेशंस आर बेसिकली कॉल्ड दिस हर्ट्ज. आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज option number fourth. Which of the following is an object oriented language? Now object oriented language अगर आपको पता है तो well and good. अदरवाइज हमारी क्लास 2 का टॉपिक एक्चुअली यही है. कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में क्लास 2 में हम विल डिस्कस इन डिटेल कि फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, सी कब इन्वेंट हुई थी, पास्कल कब इन्वेंट हुई थी. अमंग दीज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस आर बेसिकली C++. आंसर इज फोर्थ ऑप्शन. अगर पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस इन डिटेल रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस. दे आर लाइक जावा, C++, सी शार्प, इसको हम सी शार्प बोलते हैं, सी शार्प, पाइथन, PHP, जावास्क्रिप्ट, रूबी, पर्ल, ऑब्जेक्ट पास्कल, ऑब्जेक्ट सी, ऑब्जेक्टिव पास्कल, ऑब्जेक्टिव सी एंड स्मॉल टॉक. सी इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. तो सी अगर आपको कंफ्यूजन है तो इज हाई लेवल लैंग्वेज, बट ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है. And object Pascal is an extension of Pascal, and this has an object oriented feature.
यहाँ पे डाउट हो सकता है कि पास्कल यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट पास्कल यहाँ लिखा है, तो ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है. पास्कल वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज, पास्कल वॉज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. द अपग्रेडेड वर्जन इज कॉल्ड इज ऑब्जेक्ट पास्कल विच हैज एन फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. So Pascal was not an object-oriented language. Among these, the correct option is answer number 4, that is C++. In most of the software जो बनते हैं, they are based on the languages only. And one very common thing which we are using since last around 10-15 years is basically the object-oriented part. And the Java is one of the very prominent language. Earlier to that was C++ and C Sharp. So for question number 4, answer is fourth option, C++. इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी द इंफॉर्मेशन मीन्स, टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है. एक आपका रॉ डेटा होता है, कोई भी रॉ वैल्यूज हो सकती है, कोई मोबाइल नंबर है, कोई ईमेल आईडी है, कोई नेम है, कोई सरनेम है, कुछ भी है. द यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड दिस, यूजफुल थिंग इज कॉल्ड दिस इंफॉर्मेशन एक्चुअली. तो द यू कैन से फॉर इंफॉर्मेशन इज अ समराइजेशन ऑफ डेटा. टेक्निकली डेटा आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट आर प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन सच एज समरीज और टूल्स. अब एक सर्वे कंडक्ट हुआ. सर्वे वॉज कि if there is a new credit card company is being launched. अब अगर वो रॉ इन्फॉर्मेशन है कि नाम कहीं पे लिखा है, फोन नंबर कहीं लिखा है, ईमेल आईडी कहीं पे लिखा है, you put in a structured form. That structured form is basically called as information. So information in a data in a more useful manner, in tangible ways, is basically called as information. The raw thing is called as data only. So question number 5, answer is option number 2. Which of the following is an auxiliary memory? Again, that thing, I think this part we have covered already. This part we have covered. Secondary memory and auxiliary memory are same things. तो interchangeable terms हैं. Secondary memory को ही हम auxiliary memory बोलते हैं. Secondary memory इसमें कौन सी थी? Fourth option था. इसमें आंसर फोर्थ ऑप्शन आएगा. ये इसमें गलत लिखा हुआ है. ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इसमें ऑप्शन फोर्थ आएगा. दैट इज नॉन वोलेटाइल, लो कॉस्ट, highest capacity and slowest access where the programs are kept for the long term storage. लॉन्ग टर्म स्टोरेज तो हम हार्ड डिस्क में ही करते हैं, तो हार्ड डिस्क इसका आंसर होगा. ये यहाँ पे थोड़ा गलत टाइप हो गया है. तो फॉर ऑक्सिलरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी और दिस आपका सेकेंडरी स्टोरेज इज सेम थिंग. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ. आई थिंक इसमें शायद आंसर पहले आ गया है. ओके, लेट इट बी, बट आई थिंक टर्म समझ लेते हैं क्या दे रखा है. The control system is often called as, control unit is often called as nerve center, master dispatcher, clock, and all of these. So clock's control center is also called as nerve center. Answer is first option. So control unit of a digital computer is often called as nerve center. It directs the operation of the other units by providing timings and control signals. तो इंटरचेंजेबल टर्म्स है. कंट्रोल यूनिट को ही हम नर्व सेंटर बोल सकते हैं, जो डिसीजंस लेता है, जो टाइमिंग का चीज प्रोवाइड करता है, कंट्रोल करता है. I think in CPU, as I discussed, there were three things. One was control unit, one was ALU, arithmetic and logical unit, and third was a storage part. So in CPU, control unit is called as nerve center. Regarding dispatcher भी थोड़ा पता होना चाहिए. What dispatcher is, although इसका कोई link नहीं है as such with control unit or nerve center, but still software that determine what pending task should be done next and assign the available resources to accomplish it is called as dispatcher. सॉफ्टवेयर विच आर डिटरमाइन व्हाट पेंडिंग टास्क इज रिमेनिंग. अगर कुछ रहा हुआ है तो जरा सॉफ्टवेयर इसको लाइन अप करना है, तो दैट थिंग इज कॉल्ड इज डिस्पैचर. इट मे एग्जीक्यूट अदर प्रोग्राम्स और जनरेट अ लिस्ट ऑफ ह्यूमन ऑपरेशंस टू फॉलो, कि नेक्स्ट टास्क क्या करना है, नेक्स्ट टास्क क्या करना है, नेक्स्ट टास्क क्या करना है. दैट इज कॉल्ड इज डिस्पैचर. तो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन ए और फर्स्ट ऑप्शन, नर्व सेंटर. द कंट्रोल यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड इज द नर्व सेंटर. कंप्यूटर मेमोरीज आर कंसिस्टिंग ऑफ what type of memory chips? Computer memory consisting of RAM and ROM, और ROM का ही एक टाइप होता है PROM. So answer will be all of them. So what type of memories are there? Answer is option number 4. मैं पहले ही बता चुका हूँ, the computer में the questions are on a very elementary side. They want to judge you कि whether you are trainable or not. So the questions are basically आपको ये पता होना चाहिए कि memories दो टाइप की होती है. One is RAM and one is ROM. For this question, answer is fourth option. A number system that uses powers of 2 is positioning values is called this. Binary system is basically use powers of 2. So answer is option number 4. now यहाँ पे कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है जो देख लेते हैं.
इन आर नॉर्मल कैलकुलेशन पार्ट वी यूज डेसिमल सिस्टम, जो हम सब लोग यूज करते हैं, विद 10 डिजिट्स आर देयर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 10 डिजिट्स होती है। वॉट एवर नंबर्स आर पॉसिबल वो उन 10 डिजिट से फॉर्म होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज पार्ट, तो एवरीथिंग वॉट एवर वी टाइप, वॉट एवर वी डू, वो कन्वर्ट होता है बाइनरी फॉर्म में, जीरोस और वन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो 0 1 0 1 1 0 एंड सो फोर्थ, दैट इज कॉल्ड इज बाइनरी फॉर्म। अब सिस्टम ही कंप्यूटर का ऐसा है, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन द बाइनरी फॉर्म ओनली, ऑन एंड ऑफ फॉर्म, तो ऑफ इज 0, ऑन इज 1। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ और बेस भी हो सकते हैं, लाइक ऑक्टेल बेस्ड सिस्टम। ऑक्टेल बेस्ड सिस्टम में पावर्स ऑफ 8 इज यूज, तो वर्डिंग से क्लियर है। डेसिमल, डेका, डेका इज 10, डेसिमल सिस्टम में हम 10 यूज करते हैं। ऑक्टेल, ऑक्टेल में हम पावर्स ऑफ 8 यूज करते हैं, ऑक्टेल इज पावर्स ऑफ 8। बाइनरी, बाइनरी में हम पावर्स ऑफ 2 यूज करते हैं। एंड हेक्साडेसिमल बेसिकली पावर्स ऑफ 16 यूज करेंगे। हेक्साडेसिमल we use powers of 16. So for binary system we use powers of 2. Answer is ninth का fourth option. 1 MB is equal to how many bytes? 1 megabyte is equal to how many bytes? 1 megabyte is 1024 kilobytes. So 1 MB is 1024 kilobytes and 1 kilobyte is 1024 bytes. स्टार्ट होता है बाइट से, एंड अ बाइट इज अ 8 बिट कोड। तो 8 बिट जैसे 1 0 1 1 1 1 0 0, इस 8 बिट्स को, बिट होता है बाइनरी डिजिट, अगर बिल्कुल भी स्टार्टिंग से बात करें तो 1 और 0 इज कॉल्ड इज बाइनरी डिजिट। 8 बिट कंसिस्टिंग बेसिकली बाइट, एक बाइट में 8 बिट्स होंगे। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलो बाइट एंड 1024 किलो बाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगा बाइट। तो ये पूछा हुआ कि 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होंगे, तो आंसर इज 1024 इंटू 1024। इफ यू मल्टीप्लाई, आंसर विल बी 1048576। नन ऑफ दीज दे रखा है इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई। रीजन इज अगर ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, ये तो नहीं हो सकता। 1 मेगाबाइट इज 1024 किलो बाइट्स, 1 किलो बाइट इज 1024 बाइट्स, तो मल्टीप्लाई तो होगा, बट दिस कांट बी द आंसर। 1024 2 की पावर 10 होता है, ये भी 2 की पावर 10 और ये 2 की पावर 10, और 2 की पावर 20 होना चाहिए, बट बिकॉज नन ऑफ दिस ऑप्शन दे रखा है, दैट इज व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आंसर विल कम आउट टू बी ऑप्शन नंबर 2, 1048576। Which of the following are essential features of a number system? अभी नंबर सिस्टम बताया था कि बेस ऑफ 2, बेस ऑफ 8, बेस ऑफ 10, उसी के बारे में पूछा हुआ है कि the following things are important. Radix is a term used to describe the number of digits used in positional number system. तो रेडिक्स भी वही चीज होती है कि कितने डिजिट्स हम यूज कर रहे हैं। एक्चुअली फर्स्ट जो ऑप्शन है, वो सेकंड जो ऑप्शन है फर्स्ट की डेफिनेशन ही है, कितनी टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, कितनी टर्म्स हम यूज कर रहे हैं उसको हम रेडिक्स बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनरी में हम 2 डिजिट्स यूज करते हैं, ऑक्टेल में वी यूज 8 डिजिट्स, इन डेसिमल वी यूज 10 डिजिट्स। तो बेसिकली कितनी डिजिट्स हम यूज करते हैं, so that is first part and second part. Answer is fourth option. 11th में fourth is the correct answer. A 32-bit word consists of how many bytes? So as I told you, 8 bits is equals to 1 byte. 8 bits is equals to 1 byte. 32 bits क्या होगा, into 4 हो जाएगा. Answer will be equals to 4 bytes only. 8 bits is equals to 1 byte. That means 32 bits is equals to 4 bytes only. So answer is option number 3. 32-bit consists of 4 bytes only. The integrated circuit chips are made up of copper, silicon, nickel and lead. अब इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, मतलब ये आपको याद होना चाहिए कि जो सर्किट चिप्स होती है, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो किससे बना होता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज सिलिकॉन। Integrated circuit IC is a small chip that can function as an amplifier, oscillator, timer, microprocessor. And IC is a small wafer usually made up of silicon that can hold anywhere from 100 or 1000 of transistor resistors and capacitors. So ICs जो हैं वो किससे बनी होती हैं, वो बेसिकली सिलिकॉन से बनी होती हैं। So for this question answer is third option. ये याद होना चाहिए, बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ अ जीके क्वेश्चन। तो जीके में तो आपको याद होना चाहिए कि ICs जो किससे बनती है, वो सिलिकॉन से बनती है। आंसर इज थर्ड ऑप्शन। Which of the following is a true statement? इसके ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है और विद दी सेट ऑफ ऑप्शन हम इसको बहुत जल्दी आंसर कर सकते हैं। IC इज अ कंप्यूटर सर्किट यूज इन थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन वॉज कौन सा था, वैक्यूम ट्यूब था। सेकेंड जनरेशन इज बेसिकली वॉज
transistors, and third generation is IC. So answer is 14th का first option. 14th में first is correct answer. Graphic display terminals can produce what all things? ग्राफिक डिस्प्ले टर्मिनल्स, जो मॉनिटर होता है, ये उसकी टेक्निकल टर्म है, टर्मिनल बोलते हैं उसको, ग्राफिक डिस्प्ले टर्मिनल बोलते हैं. तो मॉनिटर क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है? कलर डिस्प्ले प्रोड्यूस कर सकता है, कर सकता है. ग्राफिक्स कर सकता है, कर सकता है. कैरेक्टर डेटा कर सकता है, कर सकता है. आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन. तो ग्राफिक टर्मिनल क्या होता है? अ टर्मिनल और डेस्कटॉप कंप्यूटर दैट डिस्प्लेज ग्राफिक. So terminal or a desktop computer display graphics. A terminal can produce all the above things. Answer is option number 4th. See, apart from the human or the desktop जो हम घर पे यूज करते हैं, टर्मिनल्स और भी जो तरीके के हो सकते हैं. लाइक अगर हम एक्सरे मशीन की बात करते हैं, वहाँ भी देयर इज सम रिजल्ट इज देयर, सम रिफ्लेक्शन इज देयर. तो वहाँ भी हमें कुछ ग्राफिक्स देखने हैं. सो एक्चुअल कंप्यूटर यूज इज देयर फॉर मेनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. एक्सरे मशीन इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल जिसको आप रिलेट कर सकते हैं. तो वहाँ पे भी वी आर सपोज टू यूज द ग्राफिक डिस्प्ले ओनली, जहाँ पे वी आर एबल टू सी ग्राफिक्स, कलर डिस्प्ले एंड कैरेक्टर डेटा ओनली. सो आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन. Which type of access method is used to obtaining a record of data from magnetic tape? In magnetic tape, it is basically sequential type of thing. The access method used for cassette tape is sequential. Magnetic tape data storage for storing digital information on magnetic tape using digital recording. So modern magnetic tape is most important, most commonly packaged for cartridges and cassettes. Apart from all these technical things, one simple thing is, आपने अगर टेप यूज करा हो, आप अपने पेरेंट्स से पता करना है, पेरेंट्स से पूछना. मैग्नेटिक टेप टेप आया करता था, ऑडियो कैसेट आती थी. ऑडियो कैसेट और मैग्नेटिक टेप लगभग सिमिलर सी चीजें. और वहाँ पे डेटा कैसे एक्सेस होता है? आपका 1 by 1 फॉर्म में होता है. ये एक सीक्वेंशियल फॉर्म में डेटा एक्सेस होता है. सीक्वेंशियल एक्सेस डेटा को कहाँ पे यूज करते हैं हम? इसको मैग्नेटिक टेप में यूज करते हैं. अब ये हार्ड डिस्क में नहीं हो पाएगा कि हार्ड डिस्क से मुझे अगर डेटा रीड करना है, अब मैंने कोई फाइल स्टोर करी है बहुत दूर पे, अब मुझे अगर स्टोर करना है, चेक करना है, तो वो मैं कर नहीं सकता, और रैंडम डेटा आपका एक्सेस इज रिक्वायर्ड. तो वेरी सिंपल थिंग इज मैग्नेटिक टेप इज लाइक अ ऑडियो कैसेट. ऑडियो कैसेट में डेटा सीक्वेंशियल फॉर्म में स्टोर रहता है, और वही पूछा हुआ है. उसका टेक्निकल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है. द एक्सेस मेथड यूज फॉर कैसेट टेप इज कॉल्ड सीक्वेंशियल. The magnetic tape data storage is a system of storing digital information on a magnetic tape using digital recording, and that is used in cartridges or that is used in cassettes only. So answer will be second option. Which of the following is not a valid processor? 4004, 8085, 80188, 8084. अब ये तो याद करने वाली बात है कि ये कुछ प्रोसेसर से बहुत पुराने. Intel 4004 is a 4-bit processor. Intel 8085 is a 8-bit processor. Intel 80188 is also 8-bit processor. ये आप अपने कोर्स में पढ़ेंगे आगे जाके. बट अगर क्वेश्चन दे रखा है, तो अगर यही क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप इसको जल्दी से आंसर कर सकते हैं कि 8084 जो है, ऐसा कोई प्रोसेसर जो नहीं था, वो नहीं है बेसिकली. तो आंसर इज 17th का फोर्थ ऑप्शन. Which of the following is not a flavors of Unix? Unix is an operating system. ठीक है. अब यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे कुछ वेरिएंट्स आए थे, कुछ वैल्यू फ्लेवर्स आए थे. तो फ्लेवर्स क्या होते हैं? द वाइडली यूज्ड टर्म फ्लेवर्स ऑफ यूनिक्स रेफर्स टू द मेनी यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैव बीन डेवलप्ड बेस्ड ऑन ओरिजिनल यूनिक्स दैट वाज रिटन इन 1969 बाय केन थॉमसन एंड बेल लैब्स ओनली. तो प्रोटोटाइप बोल सकते हैं उसको कि यूनिक्स एक आया, उसके बाद उसके सिमिलर वर्जन्स आते गए. दैट इज कॉल्ड एज फ्लेवर्स ऑफ यूनिक्स. तो फ्लेवर्स ऑफ यूनिक्स एक्चुअली हैव बीन डेवलप्ड बाय आपका many Unix like operating system that will be developed based on the original Unix that was written by 1969 by Ken Thompson and Bell Labs. तो उसमें कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन नहीं था? फर्स्ट है, सेकेंड ऑप्शन भी है, थर्ड ऑप्शन नहीं है. तो मल्टिक्स जो है वो ऑप्शन में नहीं है. आंसर इज सी ऑप्शन. अभी के लिए याद कर लीजिए, यूनिक्स अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो ये क्लैरिटी नहीं आएगी. एक टाइप ऑफ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आउट ऑफ सम आपका 100 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन में आपको याद करना पड़ता है. कंप्यूटर बहुत वास्ट है. यूनिक्स के फ्लेवर्स कौन से थे? मिनिएक्स फ्लेवर है उसका, डॉसेक्स एक फ्लेवर है, थर्ड ऑप्शन जो है वो उसका फ्लेवर नहीं है. तो फ्लेवर वैसे क्या हो सकते हैं? डेवलप्ड, दैट आर डेवलप्ड लाइक, जैसे यूनिक्स डेवलप हुआ था वैसे ही कुछ सॉफ्टवेयर और डेवलप हुए थे उन्हीं लाइंस पर. उसको हम बेसिकली बोल सकते हैं कि ये फ्लेवर्स ऑफ यूनिक्स थे. इसमें भी आई थिंक शायद आंसर गलती से आ गया है. बट द स्टैंडर्ड वे ऑफ गिविंग एन एड्रेस ऑफ एनी रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज थ्रू, दैट इज कॉल्ड इज
URL होगा, सेकेंड ऑप्शन है। तो ठीक है, ऑप्शन आया है तो सही नहीं है, URL आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको वेबसाइट्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। वेबसाइट में जो कंप्लीट ये होता है, ये कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। सबसे पहले ही प्रोटोकॉल होता है HTTP। द फुल फॉर्म इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सब डोमेन होता है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ये वेबसाइट कहाँ कहाँ पब्लिश कर सकते हैं, कहाँ कहाँ रन कर सकते हैं, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। डोमेन नेम, आपको डोमेन नेम नॉर्मली बुक करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ता है। आप इसी वेबसाइट को अपने नाम से या अपनी डिटेल से ओपन नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू ओपन अ बिजनेस, आपको अपनी वेबसाइट रिक्वायर्ड है, तो आपको डोमेन नेम के चार्जेस देने होते हैं एक्चुअली। तो डोमेन नेम इज लाइक गूगल, एंड द टॉप लेवल डोमेन TLD इज बेसिकली कमर्शियल। ये कमर्शियल वेबसाइट है। इसमें गवर्नमेंट वेबसाइट हो सकती है, स्कूल की वेबसाइट भी हो सकती है, gov.in हो सकता है, .in हो सकता है, कोई भी यहाँ पे एक्सटेंशन हो सकता है। तो इस एक्सटेंशन को हम टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। इस पूरी चीज को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। तो 19th का आंसर इज URL। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस पूरी चीज को हम बेसिकली बोलते हैं URL। The protocol used for sending and receiving email through internet is, for email we use SMTP. Again that part we'll discuss in next class कि SMTP क्या होता है, पर अभी के लिए आप नोट कर लीजिए कि SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। The TCP/IP is ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऐसे SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फॉर ईमेल हम नॉर्मली SMTP का यूज करते हैं। आंसर इज थर्ड ऑप्शन। The following is a false statement. Digital computer work on sequential basis. Programming written in a high-level language are known as object programs. Every program has its own machine language. Assembler is needed to translate assembly-level program into a machine-level program. इसमें थ्री जो स्टेटमेंट्स हैं वो लैंग्वेज से रिगार्डिंग है। लैंग्वेज हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, बट इसमें स्टेटमेंट नंबर 2 फॉल्स है अगर आंसर रिक्वायर्ड है तो। द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम दैट इज डेवलप्ड बाय सम डेवलपर्स इज नोन एज सोर्स कोड। तो उस प्रोग्राम को हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स नहीं बोलते हैं, उसको हम नॉर्मली सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर है सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, एवरी कंप्यूटर हैज इट्स ओन मशीन लैंग्वेज, ये पार्ट करेक्ट है। असेंबलर इज नीडेड टू ट्रांसलेट असेंबली लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल प्रोग्राम, ये भी पार्ट करेक्ट है। डिजिटल कंप्यूटर वर्क ऑन सीक्वेंशियल बेसिस, ये पार्ट भी करेक्ट है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? आंसर इज सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड फर्स्ट। अब हिस्ट्री के बारे में पूछा हुआ है कि कौन सी लैंग्वेज कब डेवलप हुई थी, तो ये आप याद कर सकते हैं। कोबोल वाज डेवलप्ड इन 1959, पास्कल वाज डेवलप्ड इन 1970, बेसिक वाज डेवलप्ड इन 1964, सी वाज डेवलप्ड इन 1972। सो विच वाज द लैंग्वेज वाज डेवलप्ड लास्ट? लास्ट में सी आएगा, बट फर्स्ट में तो कोबोल आएगा। तो इसमें भी सेकंड ऑप्शन आंसर है। इसमें आंसर जो है सेकंड ऑप्शन आएगा, फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा। ओके द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूजुअली इंप्लीमेंटेड विद एन इंटरप्रेटर। तो अगेन मैं पहले ही बता चुका हूँ, लैंग्वेजेस वाला पूरा पार्ट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। विद इंटरप्रेटर नॉर्मली वी यूज बेसिक। तो बेसिक इज समथिंग दैट इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग इंटरप्रेटर। द पास्कल एंड कोबोल आर बेसिकली यूज विद कंपाइलर। पास्कल के लिए हम कंपाइलर यूज करते हैं, कोबोल के लिए हम कंपाइलर यूज करते हैं। पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, अदरवाइज वेट टिल द नेक्स्ट क्लास कि ये टॉपिक हम उसमें कवर करेंगे। अभी आप इसको याद कर सकते हैं कि बेसिक इज यूज विद एन इंटरप्रेटर। ये सब ट्रांसलेटर्स हैं बेसिकली, कंपाइलर एंड दिस इंटरप्रेटर आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। हम अपने कन्वीनियंटली वी कैन राइट द कोड, बट अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर ट्रांसलेट कैसे होगा? तो बेसिक इज एन आपका ओल्ड लैंग्वेज जहाँ पे हम इंटरप्रेटर यूज करते थे। इन पास्कल एंड कोबोल वी यूज कंपाइलर। The block diagram that outlines the sequence of steps in solving a problem is. So for any solving a problem, we use a block diagram method. उसको नॉर्मली क्या बोलते हैं? इट इज बेसिकली कॉल्ड दिस अ प्रोग्राम फ्लो चार्ट। जिसे एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्ट द लूप, सम कंडीशन इज गिवन, द कंडीशन गोज ट्रू, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, and then increment or decrement, and then again go to step number 1. The condition is false,
एंड द लूप। तो ये काइंड ऑफ अ लूप जो है प्रोग्रामिंग में हम इसको यूज करते हैं। इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड इज प्रोग्राम फ्लो चार्ट। आंसर इज सेकंड ऑप्शन। द यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज द इंटरनेट साइट इज कॉल्ड इज, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, द यूनिक नेम इज एक्चुअली कॉल्ड इज डोमेन नेम, जो हमें बुक करवाना पड़ता है। दोबारा एक बार देख लेते हैं, मैंने लास्ट एग्जाम्पल ये वाला लिया था, वो दोबारा देख लेते हैं। इसमें से ये सब डोमेन है, ये डोमेन नेम है, और ये टॉप डोमेन है, टॉप लेवल डोमेन है। अब ये आपको बुक करवाना पड़ता है। अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको अपनी वेबसाइट रिक्वायर्ड है, तो आपको डोमेन नेम बुक करवाना पड़ता है। तो उस डोमेन नेम के बुकिंग की आपको एक फीस देनी पड़ती है, लाइक मंथली और एनुअल फीस देनी पड़ती है। इस कंप्लीट को हम बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एंड जो आइडेंटिफाई करता है आपकी वेबसाइट को, दैट इज कॉल्ड इज अ डोमेन नेम। सो 25th का आंसर इज सेकंड ऑप्शन। XML stands for XML stands for Extensible Markup Language. That is option number 2. A document formatting language used for some worldwide web pages. Is like HTML के फ्रंट पर ही है। जैसे HTML होता है Hypertext Markup Language, ऐसे ही Full Extensible Markup Language is normally XML, जो हम यूज करते हैं for a document formatting languages used for some worldwide pages. तो ये वहाँ पे language यूज होती है। The error in computer is called as virus, worm, bug, or none of these. If there is some error in the language, they are basically called as bug. A software bug is an error, flaw, or fault in a computer program or system that causes it to produce an incorrect or unexpected result or to behave in an unintended ways. आपने एक प्रोग्राम लिखा, अब सी, अगर आपने सी पढ़ी हुई है, अगर आपको सी का आइडिया है, आपने एक प्रोग्राम लिखा, अब वहाँ पे आपने कुछ भी एक एरर कर दी कि वहाँ पे कुछ सेमीकोलन लगाना था या कॉमा लगाना था, ब्रैकेट लगाना था, आपने वो नहीं लगाया, या कोई लॉजिकल एरर हो गया या कोई फॉल्ट हो गया। तो वो लॉजिकल एरर या चीज को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बग बोलते हैं नॉर्मली। अ सॉफ्टवेयर बग इज एन एरर, comma flaw or a fault in a computer program or a system that causes it to produce an incorrect or unexpected result or to behave in an unintended ways. तो टर्म है एक्चुअली, बग हम यूज करते हैं, इसको एरर भी बोल सकते थे, इसको फ्लॉ भी बोल सकते हैं, फॉल्ट भी बोल सकते हैं, बट कंप्यूटर में इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बग बोलते हैं नॉर्मली। सो आंसर इज 27th का सेकंड ऑप्शन। अ कंप्यूटर वायरस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इट्स बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम व्हेन एग्जीक्यूटेड replicates itself by modifying other computer program and inserts its own code. When it replicates succeed, the affected area is called is infected with a computer virus. एक वायरस अगर आपने बनाया है, अगर वायरस आपके मोबाइल में कंप्यूटर में है, दैट मीन्स वो एरिया इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब वायरस क्या होता है, इफ स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट 1 वो एग्जीक्यूट होता रहता है, थ्रू ईमेल वो डिफरेंट डिफरेंट आपके सारे कॉन्टैक्ट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे वायरस फैलने का कैसे मेथड है, बेसिकली व्हेन एग्जीक्यूटेड रेप्लिकेट इटसेल्फ बाय मॉडिफाइंग अदर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इंसर्टिंग इट्स ओन कोड ओनली। तो अपने आप सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होता है, जो अपने आप फैलता रहता है, फैलता रहता है, फैलता रहता है, फैलता रहता है, उसको हम वायरस बोलते हैं। और वायरस से जो एरिया इफेक्ट होगा उसको हम इन्फेक्टेड पार्ट बोल सकते हैं। अब वॉर्म क्या होता है, अ कंप्यूटर वॉर्म इज अ टाइप ऑफ अ मालवेयर दैट स्प्रेड्स copies of itself from computer to computer. A worm can replicate itself without any human interaction and does not intend to attach itself to a software program in order to cause damage. Malware क्या होता है? Malware is malicious software. See, there is software, constructive software I can say. The purpose is to give a useful information or to solve the purpose. A word एक useful आपका software है. Malware होता है malicious software. Purpose is to disrupt the information, to get the we can say password or to get any critical information. उन्हीं में ये सारे टाइप्स आते हैं मालवेयर में। वायरस उसी का एक टाइप है, कंप्यूटर वॉर्म उसी का एक टाइप है। तो अगर वॉर्म आपके कंप्यूटर में है तो वॉर्म कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन एंड डज नॉट नीड टू अटैच इटसेल्फ टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू कॉज डैमेज। आपके अगर फ्लॉपी में या हार्ड डिस्क में अगर वॉर्म है तो वो अगले हार्ड डिस्क में ट्रांसफर हो जाएगा, आपने अगर वो फाइल ट्रांसफर करी तो, एंड सो फोर्थ। बेसिकली इट कैन डैमेज द कंप्यूटर। वायरस ऑन कॉन्ट्ररी वो फैल सकता है, मतलब बेसिकली वो वन ईमेल टू सेकंड ईमेल आपने कुछ भी प्रोग्राम करा तो फैल सकता है। अगर आपके हार्ड डिस्क में अगर वॉर्म है तो नॉर्मली वो उस हार्ड डिस्क को जो है वो क्रैश कर देगा या उस हार्ड डिस्क में जो है वो डैमेज कर देगा, उसको हम वॉर्म बोल सकते हैं। तो तीनों ही टर्म्स पता होनी चाहिए। बग इज बेसिकली एरर और अ फॉल्ट, ताकि वो प्रोग्राम रन नहीं हो पाए, उसको हम बग बोल सकते हैं। वायरस इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम एंड वॉर्म कैन डैमेज अ हार्ड डिस्क और एनी कंप्यूटर। ओके, लेट्स मूव फर्दर।
A collective term used to all the machines that make up of computer configuration is. For a collective term used for all the machine is called this hardware. अब हार्डवेयर सब लोग यूज करते हैं कि जैसे प्रिंटर, देयर इज अ मॉनिटर, देयर इज अ माउस एंड सो फोर्थ. अब यहाँ पे वो बिल्कुल टेक्निकल फॉर्म में लिखा हुआ है. अ कलेक्टिव टर्म यूज फॉर ऑल द मशीन दैट मेक अप द कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन इज. तो हार्डवेयर इसका आंसर है. कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सच एज केस, सीपीयूज, मॉनिटर, कीबोर्ड, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, स्पीकर्स एंड मदरबोर्ड. ये सब हार्डवेयर के अंदर आ सकते हैं जो हमारे पीसी में होते हैं, कंप्यूटर के पर्सनल कंप्यूटर में. अगर एक कंप्यूटर इन हॉस्पिटल की बात करेंगे तो वहाँ पे और भी इंस्ट्रूमेंट आ सकते हैं, एक्सरे मशीन और जो एसोसिएटेड इंस्ट्रूमेंट होंगे वो भी आ सकते हैं. तो ये हार्डवेयर की डेफिनेशन है कि अ कलेक्टिव टर्म यूज फॉर ऑल द मशीन दैट मेक अप ऑफ ऑल द कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन इज. फर्मवेयर यहाँ पे एक टर्म यूज करी है, उसके बाद थोड़ा पढ़ लेते हैं. इन कंप्यूटिंग, फर्मवेयर इज स्पेशल क्लास ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द लो लेवल कंट्रोल फॉर डिवाइस स्पेसिफिक हार्डवेयर. तो बायस इज बेसिकली फर्मवेयर. तो ये प्रोवाइड करते हैं स्पेशल कंट्रोल फॉर अरेंजिंग और फॉर अ स्पेसिफिक हार्डवेयर. उसको हम फर्मवेयर बोल सकते हैं. तो आप जो कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, जो स्क्रीन ओपन होती है वो बायस की होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. तो है तो वो सॉफ्टवेयर, पर वो कंट्रोल किसको कर रहा है? वो हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है. तो हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है उसको नॉर्मली हम फर्मवेयर बोल सकते हैं. इट इज थर्ड ऑप्शन. अगर फर्मवेयर की डेफिनेशन ये है फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर इज सेकंड ऑप्शन. The complete logical structure of a database is. The complete logical structure of a database is. इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं क्या होगा इसका. A database schema is a skeleton structure that represents the logical view of the entire database. अगेन DBMS भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे अगर स्कीमा के बारे में पढ़ेंगे तो लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस हम स्कीमा बोल सकते हैं. It defines how the data is organized and how the relations among them are associated. It formulates all the constraints that are to be applied on a data. A database consists of defining entities, relationship among them. It contains the descriptive details of database, which can be depicted by the means of schema diagrams. A database designer who designed the schema to help programming understanding the database and make it a more useful thing. तो complete order जो है, complete structure जो है DBMS का, वो schema में normally रहता है. So answer will be schema is option number 1. The physical arrangement of computers is called as topology. How the computers are arranged are basically called as a topology. LAN में बहुत इंपॉर्टेंट है कि LAN में कंप्यूटर अरेंज कैसे हैं, बस फॉर्म में अरेंज हैं, स्टार फॉर्म में अरेंज हैं, किस फॉर्म में अरेंज हैं, उसको हम टोपोलॉजी बोल सकते हैं. A network topology is the arrangement with all the computer or network systems are connected to each other. Topologies may define both physical and logical aspect of the network. Both logical and physical topologies could be same or different in the आपका सेम नेटवर्क. तो लॉजिकल टोपोलॉजी भी हो सकती है, फिजिकल टोपोलॉजी भी हो सकती है. द फिजिकल अरेंजमेंट इज बेसिकली कॉल्ड इज टोपोलॉजी. सो आंसर इज सेकंड ऑप्शन. अ ट्रैकबॉल इज एन इनपुट डिवाइस सिमिलर एज माउस ओनली. तो ये ट्रैकबॉल का मैंने फोटो यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम ट्रैकबॉल बोलते हैं. यूज हुआ था एक टाइम पे, अभी तो यूज नहीं होता है, आजकल तो वायरलेस माउस का सिनेरियो है. तो ट्रैकबॉल इज सिमिलर एज माउस ओनली, दैट्स एन इनपुट डिवाइस. Answer is second option. The following refers to the execution of two or more programs by multiple computers. If multiple computers are involved, तो कोई LAN में प्रोग्राम है या कोई अगर प्रोग्राम है जहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स आर इन्वॉल्व, मेनली ये फोरकास्टिंग में यूज कर सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में. मेनली ये हॉस्पिटल्स में यूज हो सकता है, मेनली वहाँ पे जहाँ पे बिग बिग सिस्टम्स आर देयर. घर में हम नॉर्मली इसको नहीं यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग. तो मल्टीप्रोसेसिंग इज द यूज ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स विद इन अ सिंगल कंप्यूटिंग सिस्टम. अब सिस्टम तो एक है, बट वहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स आर बेसिकली यूज. दैट इज कॉल्ड इज मल्टीप्रोसेसिंग. वर्ड भी क्लियर है, मल्टीप्रोसेसर्स. तो मल्टीपल प्रोसेसर्स यूज होंगे. दो टर्म्स और इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं. मल्टीटास्किंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अलाउड बाय यूजर टू परफॉर्म मोर देन वन कंप्यूटर टास्क एट अ टाइम. अगर आप दो तीन वर्क कर रहे हैं, दो तीन काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मल्टीटास्कर. टू टास्क पर टाइम, टू टास्क पर आपका एट वन मोमेंट, उसको मल्टीटास्कर बोल सकते हैं. मल्टीप्रोग्रामिंग इज पैरेलल प्रोसेसिंग इन विच सेवरल प्रोग्राम्स कैन रन एट सेम टाइम ऑफ यूनिप्रोसेसर. तीन चार पांच प्रोग्राम रन हो रहे हैं, उसको बोल सकते हैं मल्टीप्रोग्रामिंग. तो मल्टीप्रोग्रामिंग इज पैरेलल प्रोसेसिंग इन विच सेवरल प्रोग्राम्स आर रन एट द सेम टाइम ऑन अ यूनिप्रोसेसर. यूनि मतलब सिंगल प्रोसेसर.
For this question, answer is first option. The following network configuration allows a central server, bus, ring, star and hybrid. इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो सर्वर नॉर्मली टोपोलॉजीज में और लाइन में यूज होता है, तो ये स्टार टोपोलॉजी है जहाँ पे एक सेंट्रल सर्वर है, सेंट्रल कंप्यूटर है और वहाँ से हम 5 कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं। इनका नाम से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ये स्टार चीज है, जैसे स्टार फॉर्म होता है नॉर्मली। बस मतलब बस की तरह होगा, वहाँ पे एक ऊपर एक नीचे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, उसको बस टोपोलॉजी बोल सकते हैं। रिंग टोपोलॉजी, अगर एक रिंग बनी हुई है, स्क्वायर रिंग और सर्कुलर रिंग, कोई भी रिंग हो सकती है। हाइब्रिड मतलब एनी मिक्सचर ऑफ एनीथिंग is called as hybrid thing. But for this question, where a central server is there, that is called as star. Answer is star topology is a topology for a LAN where all the nodes are individually connected to a central connecting point like a hub or a switch. The function performed by communication software is communication software is an application or a program designed to pass information from one system to another. That is called as communication software. And all these functions are performed by communication software only. तो एक प्रोग्राम डिजाइन किया है विच इज यूज फॉर पासिंग द इंफॉर्मेशन, तो ये सारे उसमें होने चाहिए, डेटा कंपैरिजन, डेटा कंप्रेशन, रिमोट कंट्रोल, एरर करेक्शन। तो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। द सम ऑफ वेटिंग टाइम एंड ट्रांसफर टाइम इज बेसिकली कॉल्ड इज एक्सिस टाइम। अगेन पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, वरना फिर इसको याद कर सकते हैं कि एक्सिस टाइम क्या होता है। एक्सिस टाइम इज वेटिंग टाइम प्लस ट्रांसफर टाइम। So this access time is defined as total time required by the computer to process a read or write request and then retrieve the required information from disk storage. तो आप वेट कर रहे हो कि वो डेटा आएगा एंड देन उसको ट्रांसफर करेंगे। दिस सम इज कॉल्ड इज एन एक्सेस टाइम ओनली। सो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट हैंड आउट इज CBT 701006। से मैं 2 हैंड आउट कंप्लीट करते हैं, थोड़ा जल्दी में इसमें करना पड़ेगा ताकि आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर एटलीस्ट नोट कर पाएं कि इसमें आंसर्स क्या क्या आएंगे। बाकी टर्म्स मैंने लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, एंड देन लेटर आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। assembler is system software. आंसर इज इट ट्रांसलेट द प्रोग्राम फ्रॉम असेंबली लेवल प्रोग्राम टू मशीन लेवल प्रोग्राम। हम इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हैंडआउट मिक्सचर एक्चुअली, इसमें बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड है और 4 हैंडआउट्स हैं, तो इसमें मिक्सचर है। C, C++, Pascal are actually programming languages. Second option, third option, fourth option are programming languages. Database is a complete system जहाँ पे डेटा को मैनेज करते हैं, DBMS, database management system. So which is the odd man out? So remaining 3 languages हैं, C, C++ and Pascal. Answer is first option. IS stands for information system. In computer, IS stands for information system. Answer is third option. हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इसकी फुल फॉर्म तो इंपॉर्टेंट है। ASCII क्या होता है, EBCDIC क्या होता है। सो ASCII इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हमने जो भी लिखा है, कोई भी A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, एवरीथिंग विल कन्वर्ट इनटू अ 7-bit कोड। तो हर एक के लिए कोड बना हुआ है, A के लिए, B के लिए, C के लिए, D के लिए, हर एक के लिए कोड्स बने हुए हैं। वो कोड नॉर्मली 7-bit कोड होता है। सी आई हैव टाइप्ड यूजिंग नॉर्मल अल्फाबेट्स और नंबर्स ओनली। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, तो कन्वर्जन कैसे होगा, थ्रू ASCII ओनली। तो वन सिस्टम इज ASCII, ASCII है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट इज EBCDIC, that is extended binary coded decimal information interchange, then 8-bit code that is used by IBM mainframe और IBM computers only. तो ASCII एक 7-bit कोड है, सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। EBCDIC एक 8-bit कोड है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। So which is a false statement? Answer is first option. So ASCII uses 8-bit code to represent data, that being a false statement. Answer is fourth का first option. Java is an object-oriented programming language. Java is an object-oriented programming language or a high language. Third answer आएगा. WAP is an wireless application protocol. ये abbreviations ही use हो रही हैं, तो abbreviations आप थोड़ा याद कर सकते हैं। Wireless application protocol is a specialization for a set of communication protocols to standardize the way wireless devices work. तो ये कैसे वर्क करेंगे, टेलीफोन्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ये किसके अंडर में आएगा, प्रोटोकॉल्स में आएगा। द प्रोटोकॉल इज WAP ओनली, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये कुछ रूल्स बने हुए हैं। HTTP is a protocol, hypertext transfer protocol. HTTPS is also a protocol.
FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऐसे ही WIP एक प्रोटोकॉल है कि हाउ द ट्रांसमिशन विल अकर थ्रू सेलुलर टेलीफोन्स एंड रेडियो ट्रांसमिशंस, that is called as wireless application protocol. That will be second option. AI stands for artificial intelligence. सब लोगों को पता होगा ये artificial intelligence. This third option. Arrange the following in ascending order. डेटा में इसको यूज करते हैं, DBMS में इसको यूज करते हैं. सबसे मिनिमम डेटा होता है, देन आइटम होता है, देन रिकॉर्ड होता है, देन फाइल होती है. एक फाइल में एक नाम है, अगर पंकज एक नाम है, उस पंकज का एज, then mobile number, then address, then email information, then PAN number, then आधार कार्ड is called as record. तो फाइल में 15-20 नाम हो सकते हैं. एक रिकॉर्ड एक नेम की तरह हो गया, इसके मैनी आइटम्स हो सकते हैं. और एक आइटम में बहुत सारे डेटा वैल्यूज हो सकती है कि पैन नंबर भी है, आधार नंबर भी है. आइडेंटिटी प्रूफ में कौन कौन से डेटा रिक्वायर्ड है, तो पैन नंबर इज देयर, आधार नंबर इज देयर, कुछ और डेटा भी है. तो मल्टीपल डेटा भी वहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं. तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे मिनिमम डेटा होता है, देन आइटम होता है, देन रिकॉर्ड होता है, एंड देन फाइल होती है. तो मिनिमम इज डेटा, मैक्सिमम इज फाइल ओनली. तो ये 1-2 बाइट का हो सकता है, फिर ये 2-3 बाइट का हो सकता है, ये 15-20 बाइट का हो सकता है, और ये पूरी फाइल जो है सबसे हाई साइज की होगी. थर्ड इज द करेक्ट आंसर. विंडोज NT, विंडोज XP, विंडोज 95, विंडोज 98. फाइंड द ऑड मैन आउट. ऑन अ सिंपल थिंग, 3 विंडोज हमने यूज करी हुई हैं, 95, 98, XP. NT शायद आपने यूज नहीं करी हुई होगी, और इसका एक्चुअल रीजन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल NT होता है विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी. बाकी सारी विंडोज में, विंडोज XP, विंडोज 95, विंडोज 98 was having DOS. DOS is an underlying operating system. आप DOS से स्टार्ट करोगे, DOS से आप फॉर्मेट करके DOS से आप इसको इंस्टॉल करते हो विंडोज को, विंडोज 95, 98 और XP को. विंडोज NT में ये नहीं करते हैं. सो दिस इज अ डिफरेंट थिंग. सो 9th का आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन. The following is a self-replicating malicious program. अभी डिस्कस करा था, वायरस इज एन self-replicating malicious आपका प्रोग्राम. सो आंसर इज सेकेंड ऑप्शन. बग के बारे में मैं बता चुका हूँ शायद, सॉफ्टवेयर बग इज एन एरर और फॉल्ट, जो हम बता चुके हैं ऑलरेडी, कि कोई भी अगर प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसको नॉर्मली हम बग बोल सकते हैं. स्पैमिंग इज द यूज ऑफ मैसेजिंग सर्विस टू सेंड अनसॉलिसिटेड मैसेज. आपके पास एक मेल आया है बाय एन अननोन सेंडर, उसको नॉर्मली हम स्पैम बोलते हैं, कि वो सेंडर मुझे पता ही नहीं है कौन है, तो उसको नॉर्मली हम स्पैम बोल सकते हैं. बट वायरस इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग मलिशियस सॉफ्टवेयर. आंसर इज सेकेंड ऑप्शन. The following is a backup storage device. RAM, ROM नहीं होगा, USB भी नहीं होगा. USB डिवाइस पेन ड्राइव हो सकता है, USB पोर्ट नहीं हो सकता है. तो USB नॉर्मली हम पोर्ट के लिए यूज करते हैं. USB is defined as universal serial bus, which is kind of a computer port only. DVD is a storage device, or full form of DVD is digital video display. The storage is around 4 to 5 GB. Answer is fourth option. The programming language used to create web pages is HTML, Hypertext Markup Language, is for creating web pages. ICs were used in, बिल्कुल डिटेल में इसकी बात करी, डिस्कस करा था. ICs were used in third generation. In third generation we have used integrated circuits. Answer is third option. The following is used to design a program using English-like statements. That is called as pseudocode. So pseudocode is something where the English-like statements are used. So it's an informal, high-level description of the operating principles of a computer program or other algorithms. It uses the structural conventions of a normal programming language that is intended for human reading rather than the machine reading. तो हमारे समझने के लिए जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, that is called as a pseudocode. तो pseudocode टर्म जो आप याद कर सकते हैं, the informal, high-level description of the operating principle of a computer program or other algorithms. So answer is first option. Assemblers, compilers and interpreters are basically language translators. इनको language translators बोलते हैं. आपने language लिखी according to your own convention. And for converting for computer part, we use assembler, we use compiler, and we use interpreters. So more discussion will be in class number 2, but for the time being, answer is second option. The following is not a feature of DBMS. DBMS में I can see सारी terms यूज होती हैं. तो जिसने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा हुआ है, उसको सबको आइडिया होगा कि DBMS में क्या होता है.
तो बाकी इन डिटेल एक डेटा डिक्शनरी होता है, एक स्कीमा होता है और एक क्वेरी होता है। तो डिक्शनरी स्कीमा के बारे में बात कर चुके हैं, तो कंप्लीट लॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड ए स्कीमा। अ क्वेरी इज काइंड ऑफ अ सर्च ऑप्शन फॉर रिक्वेस्ट ऑफ अ डेटा फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस और क्वेरी थिंग कि मैं क्वेरी करनी है, मैं नंबर ढूंढना है, कुछ भी वैल्यू करनी है, दिस इज कॉल्ड एज क्वेरी। A dictionary is a set of informing information describing the content, format, or structure of a database and relationship between its elements used to control access and manipulation of the database. That is called a dictionary. डिक्शनरी भी एक टर्म है, स्कीमा भी एक टर्म है, क्वेरी भी एक टर्म है। ये सब डीबीएमएस जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत इजी है, वो इनको रिलेट कर सकते हैं। फॉर अदर्स आई कैन से कि इसको आप याद कर लीजिए, बिकॉज हर टर्म को सर्च करना और याद करना पॉसिबल नहीं है, एक लिमिटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ही याद कर सकते हैं। सो 16th का फोर्थ ऑप्शन। इंडिविजुअल पीस ऑफ डेटा विद इन अ रिकॉर्ड इज कॉल्ड दिस, द इंडिविजुअल पीस ऑफ डेटा इज कॉल्ड दिस फील्ड ओनली। रिकॉर्ड इज लाइक पंकज का एक रिकॉर्ड निकालना है मुझे, या किसी भी एम्प्लॉय का किसी वैल्यू का रिकॉर्ड निकालना है। राहुल का मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो राहुल इज अ मेल, इज अ पर्सन जिसका डेट ऑफ बर्थ मुझे पता है, देन डेट ऑफ बर्थ पर मुझे उसका पेन नंबर पता है, आधार नंबर पता है, कुछ भी पता है। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं इसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। इस रिकॉर्ड में हम फील्ड्स होती हैं, तो फील्ड इज बेसिकली द वर्टिकल थिंग कि उसका पेन नंबर क्या है, तो पेन नंबर की जो पूरी फील्ड हो गई। देन उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो पूरी फील्ड हो गई। सैलरी कितनी है, वो पूरी फील्ड हो गई। एजुकेशन क्या है, वो पूरी फील्ड हो गई। तो उसको हम फील्ड नॉर्मली बोलते हैं। तो डेटाबेस में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड विल बी हॉरिजॉन्टल थिंग, अगर आपने एक्सेल यूज करा हुआ है तो रिकॉर्ड लाइक अ हॉरिजॉन्टल रो थिंग, फील्ड विल बी अ वर्टिकल थिंग। सो आंसर इज 17th का सेकंड ऑप्शन। स्टैंडर्ड लैन कंपोनेंट, ये सारे लैन कंपोनेंट्स हैं, ये सब हम यूज करते हैं। अगर आपको लैन बनानी है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज, केबलिंग सिस्टम इज यूज, एनआईसी यूज करते हैं, एक कार्ड होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको यूज करते हैं। देन स्विचेस को यूज करते हैं, राउटर्स को यूज करते हैं। तो हार्डवेयर रिक्वायर्ड फॉर अ लैन विल बी ऑल द अबव। इन सब चीजों को हम यूज करते हैं। आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। A special computer program that directly communicates messages between the several network is called this. ऑप्शन नंबर ए, राउटर इज समथिंग जो इसमें हम यूज करते हैं, अ कनेक्शन बिटवीन सेवरल नेटवर्किंग। अगर मैंने लैन बनाई है और मुझे मैसेज ट्रांसफर करना है, राउट करना है, उसके लिए हम राउटर यूज करते हैं। तो राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो वाईफाई अलग है, राउटर अलग है। जो घर में लगा रहता है वो वाईफाई कम राउटर होता है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन पास भी हो सकती है और नेट भी कनेक्टेड होता है। बट राउटर इज मेनली यूज इन लैन पार्ट, जहाँ पे हम राउटर यूज करते हैं टू ट्रांसफर डेटा। ऐसी ब्रिज एक चीज है जो हम यूज कर सकते हैं। ब्रिजिंग इज डिफरेंट फ्रॉम राउटिंग एंड दैट इज बेसिकली इज अ कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस दैट क्रिएट अ सिंगल एग्रीगेट नेटवर्क फ्रॉम मल्टीपल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। द फंक्शन इज कॉल्ड इज ब्रिजिंग। हमें दो नेटवर्क को मर्ज करना है, तो मर्ज अगर करना है दैट इज कॉल्ड इज ब्रिजिंग ओनली। एंड अ रिपीटर इज for getting a correct data, correct information. A repeater is an electronic device that receives a signal and retransmits it. Repeaters are used for extending transmission so that the signal can cover longer distances and receiving at the other side to be executed. So for this question, for passing or for transferring the information between two networks is called as router. बाकी ऑप्शंस ब्रिज में जो दो नेटवर्क को मर्ज करना है, इट इज कॉल्ड इज ब्रिजिंग। और रिपीटर मीन्स कोई सिग्नल अगर नहीं मिल रहा है तब हम बेसिकली रिपीटर का यूज करते हैं। एटीएम स्टैंड फॉर asynchronous transfer mode. Asynchronous transfer mode is a switching technique that is used time division multiplexing for data communication. एक टेक्निक है जिसे हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, एटीएम asynchronous transfer mode. Transfer mode, first option is the correct answer. HTML यूज फॉर आपका वेब डिजाइनिंग प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ISP, Internet Service Provider, an organization that provides unlimited data access to internet and web for a flat fees is called this. Airtel क्या है? सिंपल टर्म्स में एयरटेल क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें नेट प्रोवाइड करता है। अब उसकी एक बिल्कुल टेक्निकल फॉर्म गिवन है, टेक्निकल डेफिनेशन गिवन है, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड अनलिमिटेड पब्लिक एक्सेस टू द इंटरनेट एंड द वेब फॉर अ फ्लैट फीस। हम मंथली फीस पे करते हैं, उसमें हमें क्या मिलता है, उसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। Fourth option is the correct answer. The smallest unit is called as pixel.
जो रिजोल्यूशंस हैं, जो पिक्सल होते हैं, वो छोटे छोटे जो ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन में ऐसे मिलियंस ऑफ पिक्सल्स होते हैं, इनको ऐड करके आपकी पूरी स्क्रीन बनती है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम पिक्सल बोल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन। तो graphic monitor displays pictures by dividing the display into thousands of pixels. The pixels are so close that they appear connected together. तो होते वो छोटे छोटे पिक्सल्स हैं, पर दोनों एक साथ रहते हैं। तो अगर एक साथ रहेंगे उसको हम पिक्सल बोल सकते हैं। आंसर 2। टू व्यू द पीडीएफ फाइल वी यूज एक्रोबैट रीडर। सबको पता है, जल्दी करते हैं आई थिंक। तो आंसर इज 24 का थर्ड ऑप्शन। Between PC and network, the following provide connectivity between a PC and a network. Answer is third option, that is NIC, Network Interface Card. तो अगर आपको नेट चलाना है तो आपके पास NIC होना चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए, तभी आपका नेट वर्क कर सकता है। वो इनबिल्ट आजकल लैपटॉप्स में आता है, पहले वो ऑप्शनल डिवाइस हुआ करता था, बहुत पहले 15-20 ईयर्स बैक, बट अभी वो इनबिल्ट NIC आपके लगा रहता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड फॉर लैन कनेक्शन भी इंपॉर्टेंट है एंड फॉर नेटवर्क थिंग भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे फाइल मैनेजमेंट कमांड्स हैं, सेव एज, कॉपी, पेस्ट, कट, मूव, रीनेम एंड सो एंड सो फोर्थ। कॉपी एक फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम है, हमें फाइल को मैनेज करना है, सेव करना है, कॉपी करना है, इरेज करना है, फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम है। फॉर्मेटिंग नहीं होता है, सो आंसर इज 26 का फर्स्ट ऑप्शन। व्हाट इज कॉमन टू म्यूजिक, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर? ये सारे के सारे वेब ब्राउजर्स हैं, ये सारे के सारे वेब ब्राउजर्स हैं। So Netscape Navigator is a web browser. Google is also a web browser. Mozilla Firefox is also a web browser. तो वेब ब्राउजर की टाइप्स हैं एक्चुअली। सो 27 का आंसर इज थर्ड ऑप्शन। और वेब ब्राउजर क्या होता है? इज सिंपली ब्राउजर एप्लीकेशन यूज टू ब्राउज वेबसाइट। सब लोग आई थिंक इसको यूज करते हैं। तो उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी थोड़ा एब्सोल्यूट हो चुका है, पुराना हो चुका है। गूगल क्रोम सब लोग यूज करते हैं। नेटस्केप नेविगेटर एक ओल्ड सिस्टम है, और एप्पल सफारी एक सिस्टम है जहाँ पे ये सारे वेब ब्राउजर्स हैं। यूनिवैक इज, हम डिस्कस कर चुके हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, द फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल डिजिटल कंप्यूटर। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है 28 की, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। स्पेशलिटी सॉफ्टवेयर, स्पेशलिटी सॉफ्टवेयर जैसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग वर्क है, आपको कार्ड बनवाना है, वो स्पेशलिटी सॉफ्टवेयर है। और ड्राइंग बनवानी है, पेंट बनवाना है, हाई मतलब डिजाइन वाला बनवाना है, तो स्पेशलिटी सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज सॉफ्टवेयर नीडेड फॉर स्पेसिफिक जॉब फंक्शन सच एज वेब डिजाइनिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट पब्लिशिंग और हाई एंड ग्राफिक डिजाइन। सो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। जो फॉलोइंग कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट इनटू प्रिंटिंग इमेजेस? प्रिंटर, सबको पता है, प्रिंटर से हम प्रिंट करते हैं। फोर्थ ऑप्शन। What hardware was used by second generation computer? In second generation, we use transistors. दो तीन बार ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो चुका है, सो 31 का फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रांजिस्टर्स। The following is an interactive computer program that help user to solve the problems. That is called as expert system. Expert system is a new system जो अभी फिफ्थ जनरेशन में वर्क हो रहा है, that designed to solve the complex problem by different methods, and that is in that evaluate the decision making ability of a human expert also. जो मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर we are using incorporating the human behavior and human things also. The expert system उसी का एक type of example है जहाँ पे we use those things. Third option. In computer terminology, UML stands for Unified Modeling Language. Is a general purpose development modeling language in the field of software engineering that is intended to provide a standard way to visualize the design of a system. आपने सिस्टम कैसा बनाया है, उस डिज़ाइन के लिए एक लैंग्वेज होती है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, UML. मोस्ट क्वेश्चंस आर लाइक फुल फॉर्म्स ओनली, मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस जहाँ पे हमें इसकी फुल फॉर्म का आइडिया होना चाहिए. इंटरफेस दैट enables dissimilar networks to communicate with one another is called as gateway. तो अगर दो डिसिमिलर नेटवर्क्स हैं, एक की नेटवर्किंग फीचर्स कुछ और हैं, अगले के नेटवर्किंग फीचर्स कुछ और हैं, उनको मर्ज कैसे करेंगे? उनको मर्ज करने के लिए हम गेटवे यूज करते हैं. राउटर में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, ब्रिजेस में दो नेटवर्किंग को ब्रिज कराया था सिमिलर टाइप के. तो सिमिलर टाइप के अगर यूज करने तो ब्रिज यूज करेंगे, और अगर डिफरेंट टाइप के नेटवर्क अगर यूज करने हैं तो वी कैन यूज गेटवे. सेकेंड ऑप्शन.
Which the following is a measuring unit for speed of CPU? लास्ट क्वेश्चन है ये, MIPS मेगाहर्ट्ज साइकिल्स पर सेकेंड। मेगाहर्ट्ज इज 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, इसके थ्रू हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं। मेगाहर्ट्ज साइकिल्स पर सेकेंड, इससे भी हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं। साइकिल एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स हो रही हैं, कितना फास्ट से काम हो रहा है। साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज एक ही बात है। एंड MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, इसके थ्रू भी हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं। सो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। ये सारे के सारे यूनिट्स हैं टू मेजर द स्पीड ऑफ CPU। MIPS इज मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मेगाहर्ट्ज से हम फ्रीक्वेंसी को यूज मेजर करते हैं, एंड साइकिल पर सेकेंड ही हर्ट्ज होता है। तो ये पहले यूज करते थे टर्म को साइकिल पर सेकेंड को, आजकल हम इसमें हर्ट्ज यूज करते हैं। तो आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना ही है। रेस्ट ये कुछ हाँ इंपॉर्टेंट आपके ब्रांड्स हैं जो आपको आइडिया होने चाहिए कि कौन कौन सी ब्रांड्स हैं टॉप में। अमेजॉन फर्स्ट पे है, गूगल सेकंड पर है, एप्पल थर्ड पर है, माइक्रोसॉफ्ट फोर्थ पर है। इनके सारे ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर हैं, कौन से सेक्टर में ये चीज़ इन्वॉल्व है, तो ये टर्म आपको आप सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। जैसे कौन सी लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है, ओरेकल सेकेंड नंबर पे है, सैप थर्ड नंबर पे है। आपकी आइडियल कंपनीज हैं जिसमें यू वांट टू वर्क और आपको वर्क आप सोच सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। सी कंप्यूटर में खुद का वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है और आपको वो चीज़ जो है वो करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ आप इसमें ढूंढ सकते हैं। टॉप सेलिंग मोबाइल कंपनीज कौन सी हैं, सैमसंग है, ह्यूआई है, एप्पल है, जियोमी है, ओप्पो है। ये सारी की सारी टॉप मोबाइल कंपनीज हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे कि टॉप कंपनीज कौन सी हैं, तो ये सारी की सारी टॉप कंपनीज हैं। इसको हम अगली क्लास में भी यूज़ करेंगे इन्हीं स्लाइड्स को, पर अभी के लिए आप एक बार नोट कर लीजिए कि ये सारी स्लाइड्स हैं। टॉप मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स कौन सी हैं, एयरटेल जो है वो सेकेंड नंबर पर है वर्ल्ड वाइड उनके यूजर्स के हिसाब से। चाइना मोबाइल जो है फर्स्ट नंबर पर है, रिलायंस जियो थर्ड नंबर पर है। तो आज के लिए इतना ही है। रेस्ट आई थिंक विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। कंप्यूटर में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा है। हैंडआउट के ऑप्शंस को सर्च कीजिए, ढूंढिए उस ऑप्शंस को। आंसर याद करना है वन थिंग, एक्सप्लोर करेंगे तो और अच्छी बात होगी। 80 to 90% आपको आता होगा और आप समझ सकते हैं, 10% को आप थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि वो चीज़ क्या है। आप एक एक चीज़ के लिए इतना एक्सप्लोर करेंगे तो टाइम लग जाएगा। So this is all about this computer's first class. Rest will do in the next class. All the best for your preparation. Thank you.